देखिए उस सिंबल के बिना आप क्या बनाओगे उसके जगह पे? वो तो in case we सिंबल्स हैं, उसको बनाने ही पड़ेंगे आप फ्लो चार्ट के अंदर। sir, like we have understand the process but forget the symbol, like No issue. Just you can study once again. You can ask. I'll explain the entire thing, whatever I taught you yesterday. No issue. I'm here to explain it. okay sir. If you are feeling any kind of doubt, I am here to tell you about each and everything, right? Right, sir. And again, I am saying the video of the lecture will be available by today Okay, on sir. YouTube. Whatever I taught it today, and whatever I taught yesterday is for every classes. The video of the classes will be available on YouTube. You can see from there also. Okay. You Sir, have yes, बोलिए. sir, अगर हम exam point of view से देखते हैं, Mm-hmm. तो which kind of question are coming? Like examples also comes in exam or without example? Examples में से भी आ सकते हैं. Whatever examples in given in the exam in the textbook, it Okay. can come or Sir, actually, on the I mean, questions can also be generated by IGNOU's exam. okay. सर ये एग्जांपल्स जैसे कि देख रहे हैं उसमें कुछ कोडिंग्स भी हैं, कोडिंग्स के भी एग्जांपल है। कोडिंग से नहीं पूछा जाएगा. मैंने कल भी बताया था कि आप लोगों के लेवल पे कोडिंग से नहीं पूछा जाएगा, एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट पूछा जाएगा, जो मैंने कल आप लोगों को समझाया. जी जी, ठीक है सर, थैंक यू. एनीथिंग एल्स एंड फ्रॉम एनीबॉडी? किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ. Otherwise, I'll go on next point. See, देखो मैंने कल आप लोगों को जो बताया, whatever I taught yesterday about algorithm and flowchart. See, there is a problem to find whether the given number is even or odd. There is an algorithm for that, which is given to find out whether the number is even or odd. Whatever input you have given, means suppose you are inputting a number, you are giving a number in the system, and you need to find out whether the number, whatever number you are using, that is even or odd, right? Right. So what is the process for finding out even or odd? Which is multiple of 2. Remainder is equals to 0 for a number to be even, otherwise it will be odd. Sir, if remainder is 0, then it is even, otherwise odd. It is 0, yes. If remainder is 0, after dividing by 2, the number is under even number, right? Otherwise it will be odd number. Good. Any number, whatever number is possible, if you will divide by 2, it will give only 0 or 1 as a remainder, right? Right. किसी भी नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो या तो उसमें से आपको क्या निकलेगा, रिमाइंडर के रूप में 0 निकलेगा, या रिमाइंडर के रूप में 1 निकलेगा. और इस तरह के जितने भी पार्ट होते हैं रिमाइंडर वाले, रिमाइंडर अगर 0 निकलता है, 0 मिलता है रिमाइंडर, तो क्या हो गया, आपका इवन नंबर होगा. And if you are getting 1 as a remainder, that will be an odd number. This is completely fine. Okay. Now, about flowchart. See, we have written like this one in your book. Yesterday I explained about from myself, and this is the book's algorithm. That is start, input and a number n, find the remainder by dividing the given number by 2. If remainder is equal to
zero, then print even, else means otherwise, print number is odd. Done? बोलिए, समझ में आया ये? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कल मैंने पूरे तरीके से एक्सप्लेन करा था, आज पूछ रहा हूँ कि बताइए कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ गया सर। इसी का फ्लोचार्ट बना दिया गया जैसा कि बताया था कल। देखिए, मैं पूछने का मतलब है कि मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था और मैंने आपको काम दिया था कि आप पढ़ो, पढ़ करके आओ। इफ यू नॉट स्टडी इट your own, it will be very difficult to manage it out, because we are taking counseling session. Yes. And in counseling session, both have some responsibility, you and me. Your responsibility is to study it out. My responsibility is to clear your doubt. Yes, I am going through the entire course, but it is not possible for each and every subjects and each and every each and every teachers to clear out the entire course. So be careful, try to study your own. It will be very beneficial and very good for us. So next question is, find the product of first n natural number. First n natural number product, you need to find out the product of first n natural number. So see, first n natural number. First n natural number means what? प्रोडक्ट फर्स्ट n नेचुरल नंबर मीन्स क्या बताओ? n की वैल्यू अगर 5 दी हुई है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं जो बोला हूँ? Yes, sir. फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मतलब हो गया कि 1 से लेकर उन सारे नंबर। अब कह रहा कि फाइंड n नेचुरल नंबर। अब फर्स्ट n नेचुरल नंबर और हम कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा सारा वैल्यू। Yes, sir. All numbers are in multiplication. तो याद रहे, कोई भी चीज दिमाग में ध्यान रख लेना, एक रूल बना करके कि किसी भी चीज को सम करना हो और उसमें रिपीटेशन के साथ सम करना हो तो वी नीड अ वेरिएबल विथ वैल्यू 0। और जब किसी को प्रोडक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो वो नीड अ वेरिएबल विथ वैल्यू 1। Why we need this one? Yes. Initiate value में बनती है वो. Yes. इनिशियल वैल्यू में क्यों हमें 0 और 1 चाहिए? सम में 0 हमने लिया, क्यों लिया? Added process करने के लिए. Yes. और कभी भी किसी भी नंबर में 0 प्लस करोगे तो कोई फर्क पड़ता है उस नंबर में? No, sir. नहीं। Same answer है. हाँ, और किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई 1 से करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। Same number मिलता है. सेम। तो ये याद रखना है। तो वी नीड टू फाइंड the product of first n natural numbers. In that case, we'll write what should be the first step of algorithm. Start. Step 1 start, बहुत बढ़िया बताया आपने। What should be step 2? n number को हम लेंगे सर. n नंबर लेके हम लोग, बहुत बढ़िया आपने बताया। n equal to 1. सबसे Write the n numbers. ओके गुड, कुछ भी कर सकते हैं। हम इनिशियलाइज कर लेते हैं, कल ही बताया था आप लोगों को। Then we take initialization. प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 कर लिया, क्योंकि प्रोडक्ट चाहिए ना हमें। Yes, sir. स्टेप 3,
एन डाल देंगे हम लोग। एन एन नंबर से स्टेप 4 एन भी मिल गया, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट इनटू 1 करेंगे। प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू 1 अब एक और ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1, ए ले लिया, राइट। राइट। ये तो प्रोडक्ट के लिए लिया हमने, यस सर। और इसको लिया हमने किसके लिए, एन इनिशियलाइजेशन के लिए। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन किसके लिए किया, वो नंबर की चेकिंग के लिए, जो हम जाएंगे 1 to n, राइट। यस सर। स्टार्ट वैल्यू हो गया। अब ए से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने लिखा अभी प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इंटू ए, इट मीन्स 1 into 1, इट मीन्स 1। यस। अब स्टेप 5, इंक्रीमेंट ए बाई 1। ए को हमने क्या कर दिया, अब ए में 1 था, अब 2 हो गया, राइट। यस। स्टेप 6 में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, इफ a is less than and equal to n, then repeat step 5 for 4 4 and 5। ये रिपीटेशन चलता रहेगा। यस सर। अब प्रिंट प्रोडक्ट, स्टेप 8 आपका स्टॉप। बोलिए, समझ में आया ये? यस सर। अब देखो इसको मैं, इसको फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे। फ्लो चार्ट बनाना तो इजी है, अगर एल्गोरिदम आपने बना लिया तो। स्टार्ट हो गया पहला, दूसरा क्या करना है आपको, इनिशियलाइज करना है, p इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, इंटर करना है, फिर क्या करना है भाई, प्रोडक्ट निकालने हैं, फिर क्या करना है भाई, ए को इंक्रीमेंट कर देना है, फिर आपको कंडीशन चेक करनी है, बोलो जी। बोलिए कितने समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया तो किसको नहीं आया फिर समझाओ। ज्यादा मैंने एक्सप्लेन इसको इसलिए नहीं किया क्योंकि हर एक प्रोसेस मैंने कल एक्सप्लेन किया था।
एक्सक्यूज मी सर जी सर मुझे पूछना था कि सर ये चेक इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू एन, तो इनका वैल्यू हमें कैसे, मतलब ये फिक्स रहेगा कि इनका वैल्यू वो जो हमने एंटर वैल्यू ऑफ एन, तो वही हमारा फिक्स हो जाएगा ना उस हिसाब से हाँ, ये। जो एन की वैल्यू डाल दोगे वही फिक्स रहेगा। ओके। अब एन की वैल्यू आप अपनी इच्छा से कुछ भी डालोगे ना, मर्जी होगा, कभी आप डालोगे 5 डालोगे, कभी 4 डालोगे, कभी 6 डालोगे, कुछ भी डालोगे। सर ये जो एरो दिया आपने यस और नो के लिए, वो हमें नो के लिए ऐसे एरो नहीं दे सकते क्या? नो के लिए एरो दे सकते हो, एरो तो दिया ना मैंने नो के लिए भी। अगर ये ए लेस देन इक्वल टू एन हुआ तो इस टाइप जाएगा वो, मतलब ये वाला रिपीट करेगा स्टेप। अगर नहीं हुआ, ए लेस देन इक्वल टू एन नहीं हुआ, तो कहाँ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, प्रिंट करेगा और एग्जिट, प्रिंट करेगा और एग्जिट कर जाएगा इससे। ठीक, हाँ जी Sir, बच्चे that means बोलिए। that यस, means a value, if a value is equal to 0, then it will be going to no, right? या ऑफ कोर्स। If there is a value above 0, it will repeat again. That means yes. If the value of this a will be more than the value of n, right, it will go on no and print the result. Otherwise, it will repeat the entire process. Correct, Bhupati? Clear, sir. Anybody who has any doubt about this one? Okay, then I can proceed for the next part. So this is one whatever given. Now I'm going on next point. See, there is another algorithm. Find the sum and average of the marks obtained by 20 students in some subject of course. See, find the sum and average of the marks obtained by 20 students in some subject of a course. Right? 20 students. So first of all, we need to define the marks obtained by 20 students. What are the process under this one? I'm explaining the process of the question. We need, what we need? We need 20 students marks. दूसरा, सेकेंड वन व्हाट, हमें क्या करना होगा? सम ऑफ ऑल मार्क्स। तीसरा, एवरेज ऑफ marks. This is our question, and the requirement of the question is, so whenever we need to take a group of inputs, whenever we need to take group of input, we comes into the process of an array. Before going to understand about this question, first of all, we need to understand about the array. What is an array? Question is, what is an array? Yes, Vikas, you wanted to say something. Yeah, so
As I know, array is a group of object and individual unit. Yeah, particular unit. You can't say group of group of an object, because object is another thing. Object comes from the class, right? Sometimes array is a class, but array is basically a user defined data type, right? Okay. Array is what? In very simpler format you should understand. Array is what? Array is, normally we can say an array is the contiguous memory allocation. Which is divided into indexes, where every index has its index value and every index has index value and identified by same here. For example, if I'm just identifying integer, int means integer type AR of 10, इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे, इंडेक्स वैल्यू always begins with 0 and ends with n-1. So if I am writing an array of 10 indexes, so it will block a memory of 10 indexes as per my definition. It has been blocked under 10 indexes, where index number will begin with 0 and ends with n-1. Why? Because we have given 10, it will ends with n in 9. 10 minus 1 is 9. Got it? समझ में आया? Yes, sir. थोड़ा डेफिनेशन बता दोगे array का? हाँ बिल्कुल बता दूंगा. मैंने कहा an array is the contiguous memory allocation which is divided into indexes, where every index has its index value and identified by same name. The index value always begins with 0 and ends with n-1. So what is the name of this array? AR. And what is the index value of first one? 0. 0. So the name of particular index is AR of 0. For this index, AR of 1. For this index, AR of 2. For this index, AR of 3. AR of 4. And AR of 4. क्लियर हो गया? जी अभिषेक, समझ में आया बच्चे? यस सी. सर एरे यूज ही क्यों कर रहा है? जी बच्चे, सर एरे का यूज ही यहाँ क्या है?
मैंने बताया जब भी बहुत सारे, अब 20 बच्चों के मार्क्स लेने हैं आपको, राइट? तो जब 20 बच्चों के मार्क्स लेने हैं तो या तो आप एक बार इनपुट करोगे 20 बच्चों का मार्क्स, राइट? और नहीं तो क्या करोगे, कहीं ना कहीं एक मेमोरी बना के स्टोर करोगे ना 20 बच्चों का मार्क्स। यस सर। अगर 20 बच्चों का मार्क्स आपको स्टोर करना है तो आपको एरे चाहिए, नहीं तो 20 अलग अलग वेरिएबल लेके चलना पड़ेगा, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4 करके। तो जब 20 वेरिएबल डिफाइन करोगे तो दैट विल बी वेरी टफ टास्क टू मेंटेन एंड टू मेमोराइज ऑल दोस थिंग्स। बोलो मैं सही कह रहा हूं? यस सर। और अगर हम ऐसा कुछ बना दें, एरे जैसा कुछ बना दें, तो एक ही नाम से हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे सारी वैल्यूज को, चाहे 20 हो चाहे 20,000 हो। तो इसलिए एरे की जरूरत पड़ी बच्चों। बोलिए क्लियर है अब? यस सर। चलो तो अब आते हैं इधर, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर ये पूछना था कि जो एरे जो आपने बताया सर, इसमें क्या सर ये जो एरे 10 करके, तो ये अलग सा क्या बॉक्सेस बन जाता है ऑटोमेटिकली? मेमोरी डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल बॉक्सेस टाइप का बन जाता है मेमोरी में, वो इंडेक्सेस बन जाती है। और उसमें क्या अलग से वैल्यू पुट करना होता है? जैसे जीरो में कितना है वैल्यू, ए या जीरो में कितना होगा वैल्यू, मतलब हाँ, वो वैल्यू अलग से इनपुट देना अलग पड़ता से देनी पड़ती है, बिल्कुल देनी पड़ती है। हाँ अच्छा। देखो ये प्रोग्रामिंग का पार्ट है, थोड़ा समझने में कम आएगा क्योंकि प्रोग्रामिंग बीच से तो समझ में आता नहीं है। प्रोग्रामिंग अगर शुरू से पढ़ा जाए तो सब कुछ समझ में आता है। तो थोड़ा सा इसको मेंटेन करो, सेकेंड सेम में आपको प्रोग्रामिंग पढ़ने को मिलेगा, फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रोग्रामिंग मस्त चलेगा। और ये सारी चीजें प्रोग्रामिंग में पढ़ाऊंगा आपको सेकेंड सेम में, सबका प्रोग्राम एक एक चीज का कैसे होता है। तो अभी हमने क्या देखा कि 20 वैल्यू डालनी है, तो इसलिए हमने एरे ले लेना है और एरे में हम वैल्यू डालेंगे। देखो कैसे डालेंगे और कैसे यूज करेंगे इसका। अब देखो अभी मैंने आप लोगों को एक चीज थोड़ा सा बताया बस कि एरे कैसे इनिशियलाइज करते हैं, समझने के लिए मैंने दिया। अभी प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं थी फर्स्ट सेम में। तो 20 बच्चों का मार्क्स लेना है, बिना एरे के भी कर सकते थे हम, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन फर्दर मोर के लिए एरे की जरूरत। अब देखो बिना एरे के बताऊं या एरे से बताऊं, बोलो, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। सर एरे से बता, जो फ्यूचर में भी एरे ही यूज होगा, तो यही हाँ बताइए। फ्यूचर में तो एरे ही यूज होगा। तो सर वही बताइए सर। ये ठीक इसका जो आप मतलब पहला वाला जैसे हम करेंगे तो आपको इंटीजर का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, इक्वल टू 1, मतलब जो भी हो मार्क्स तो पुट करना हाँ पड़ेगा डाटा में। हाँ, तो वही बताइए सर। उसको एक लूप चला करके बार बार इनपुट लेते जाएंगे और प्लस करते चले जाएंगे। एरे से ही बताइए सर। तो वो तो हो जाएगा। और एरे जब करेंगे तो एक बार सारे बच्चों का मार्क्स ले लेंगे, फिर एक बार उनको प्लस कर लेंगे, फिर उसके बाद हम फाइनली निकालेंगे, जैसे कि बुक में भी दिया हुआ है। और बुक का पैटर्न मैं नहीं लेके चल रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि हो सकता है आपको ना समझ में आए, ठीक है। एग्जाम में सर एरे से करके दिखाना पड़ेगा नहीं, या कि इंटीजर से, ऐसा कुछ तो देखो नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है, क्यों आप लोगों के लिए ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको एरे से करना है या कैसे करना है, बस नॉर्मली आपको ये क्वेश्चन करके दे देना है। हालांकि इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा,
जो पहले क्वेश्चंस पढ़ाया उसी में से पूछेगा आपका। इवन क्या है, लीप ईयर क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन। जैसे इवन नंबर के लिए पूछ देगा, ऑड के लिए पूछ देगा, लीप ईयर के पूछ देगा, 1 से 10 तक प्रिंट कर दो, प्रोडक्ट ऑफ 1 to n नंबर्स, 2 नंबर को प्लस कर दो। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछेगा आप लोगों से, लेकिन फिर भी सिलेबस में है और मैं बता रहा हूँ, राइट। लेवल होते हैं आप लोगों का, अभी क्या है, इनिशियल लेवल पे है आप लोग, तो इनिशियल के बिहाफ पर ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपने अभी स्टार्ट किया है, प्रोग्रामिंग के विषय में नहीं जानते हैं, तो हम कैसे पूछ सकते हैं उस नंबर। चलिए कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, स्टार्ट होगा। इसी से समझा देते हैं बुक वाला पैटर्न। दूसरा स्टेप क्या होगा, इनिशियलाइज एन एरे विथ 20 स्टूडेंट्स मार्क्स, एस ऑफ 20। जैसे मैंने AR लिख के समझाया था, इन्होंने क्या लिया, एस ऑफ 20। तो एस ऑफ 20, एस नाम का एक मेमोरी लोकेशन बना, जिसमें क्या हुआ, कितने लोकेशन इसमें डिवाइड होंगे, 20। 20 लोकेशन, जीरो से शुरू। 0 से स्टार्ट होगा, 19 तक जाएगा। हाँ गुड। अब क्या हुआ भाई, इसको क्या करना है, अब मान लो यहाँ पर 10, 20, आउट ऑफ 20 में लिख रहा हूँ 15, 70, 15 ऐसे मार्क्स आया हुआ है, राइट। तो प्लस करना है, तो मैंने अभी आपको एक प्रोसेस बताया था कि जब बार बार कोई चीज सम करना हो तो एक प्लस करना हो तो क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं जिसे 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। यही बताया था मैंने, याद है। यस, प्रोडक्ट के लिए 1 और ऐड के प्रोडक्ट लिए के 1। लिए 1 और इसके लिए 0। और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, किसी का एवरेज निकालना हो तो फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं आप लोग, सर ऑल नंबर्स को ऐड करके जितने टोटल नंबर, मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, सम ऑफ ऑल नंबर्स नंबर। डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर्स ना, यही होता है ना फॉर्मूला। यस जितने भी नंबर्स हैं उनका सम करो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ नंबर्स से, कितने नंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर देना है। तो अब हमें ये भी तो पता करना है कि कितने नंबर आप डाल रहे हो। 20 का तो हमने इंडेक्स बना दिया अरे, लेकिन कोई कहेगा कि नहीं 20 का बना दिया लेकिन हम 5 ही वैल्यू का नंबर डाले, 5 ही स्टूडेंट का नंबर डालेंगे। कोई कहेगा कि 15 का डालेंगे। तो वी नीड टू काउंट द नंबर ऑफ नंबर्स, राइट, एंड दैट्स व्हाई वी नीड अ काउंटर। तो हमने 2 इनिशियलाइज कर दिया, एक काउंटर और एक सम। अब हमारे पास वैल्यू तो ऑलरेडी इनिशियलाइज है 20 स्टूडेंट्स का, राइट। तो एक एक वैल्यू लेंगे और उनको प्लस करते चले जाएंगे। काउंटर कितना है, 0। तो हमने क्या किया, कंप्यूट सम इज इक्वल टू सम प्लस एस ऑफ काउंटर। मतलब एस ऑफ क्या हो जाएगा, काउंटर की वैल्यू कितनी है, 0। तो हमने कहा सम इज इक्वल टू सम प्लस एस ऑफ काउंटर। तो सम कितना है, 0, और एस ऑफ काउंटर में कितना हो गया, 10 हो गया। अब क्या करेंगे, काउंटर बढ़ा देंगे, 1 पे चला जाएगा। काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1। तो अब कहाँ चला गया, 1 पे चला गया। कहाँ था अभी, पहले 0 पे था, 0 से कहाँ चला गया, 1 पे। अब चेक करेंगे कि चेक द काउंटर, काउंटर लेस देन इक्वल टू 20, लेस देन इक्वल टू 20, लेस देन 20। क्यों भाई, क्योंकि 19 तक था, लेस देन 20, तो वही प्लस का काम फिर से होगा। स्टेप 5 और 6 हमारा रिपीट हो गए।
यानी कि फिर से काउंटर पे हम जाकर के क्या करेंगे, एस ऑफ काउंटर, यानी कि 10 प्लस 20 30। बोलो ये समझ में आया कि फिर से समझाऊं? हेलो अभिषेक, विकास, नहीं सर, ठीक है यहाँ तक। समझ में आया अभिषेक? यहाँ तक ठीक है सर। हाँ, ठीक है विकास, तुम थोड़ा प्रोग्रामिंग जानते हो, मेरे समझ में आ गया है। सर एक बार बताइए, सम प्लस क्या रहता है? फिर से बता देता हूँ, कोई बात नहीं, फिर से बताता हूँ मैं। पूछो आप लोग, मैं नहीं घबराऊंगा कि आप लोग पूछोगे तो, और ना ही मैं आपको डांटूंगा, क्योंकि ये आपका काम है। पूछोगे नहीं तो आप समझोगे कैसे? पूरा न्यू है ना, इसलिए थोड़ा हाँ कोई बात नहीं, पूछो, अच्छा लगता है आपको पूछते हो तो। देखो ये एरे हो गया हमारे लिए, मैं छोटा सा ही लेता हूँ, 0 1 2 3 4 19। यहाँ हमने ले लिया 10 15 5 18 17। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? इनिशियलाइज किया हमने, ये इनिशियलाइज कर दिया, एरे बनाकर वैल्यू हमने डाल दिया। बोलो किसी को कोई डाउट है तो पूछो इसको। एरे बनाना तो समझ में आ गया ना? अरे और सर ऐसे करके सर ये सिस्टम में बनाना पड़ेगा मुझे अलग से? नहीं 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 नहीं, आपको सिर्फ लिख देना है, ये समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। अच्छा अच्छा। जब आप डिसाइड करते हैं, कोई भी चीज डालते हैं सिस्टम में, तो मेमोरी एलोकेट करता है ना वो, हाँ तो मेमोरी एलोकेशन में ये हो गया। आप तो नॉर्मल लिखोगे एस ऑफ 20 इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर लिख दो 10 15 ओके 5 ओके ओके ओके। 18 17 ऐसे करके लिख मतलब दो। 19 तक लिखना पड़ेगा या 19 5 वैल्यू तक आप लिख के लिख छोड़ दो दो? जी। यहाँ पे सर छोड़ने का तो कुछ नहीं है, 5 बार लिखने के बाद हाँ मतलब नहीं नहीं, छोड़ना कुछ नहीं है, आपको 19 तक ही वैल्यू लिखना है, डालनी चाहिए। मतलब हमें स्लाइस बना लेना है 19 तक ही हाँ पूरा, बस बस तभी बस। वैल्यू देगा, नहीं तो नहीं देगा ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल, कहाँ से देगा? जब आप नहीं इनपुट ही नहीं दोगे तो कहाँ से नहीं देगा? नहीं, वही डाउट क्लियर करना था। अच्छा समझ आ रहा है। हाँ जहां डाउट आता है ना, आप लोग मेरे को बोलो सर ये बता दो तब आगे बढ़ो, बस मैं जरूर बताऊंगा, मेरा काम है बताना। तो आप ऐसे बॉक्स नहीं बनाएंगे, आप ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर में, ठीक है? तो आप जैसे ऐसे लिखोगे ना, मेमोरी में वो बॉक्सेस बना करके रख लेगा। वो इंटरनल है, वो आपको दिखेगा नहीं कैसे करके रखा है, क्योंकि पहला वैल्यू 0th लोकेशन पे जाएगा, ये फर्स्ट लोकेशन पे जाएगा, सेकंड लोकेशन पे जाएगा, थर्ड लोकेशन पे जाएगा, फोर्थ लोकेशन पे जाएगा, एंड सो ऑन। अब हमने क्या किया, सम इज इक्वल टू 0 कर दिया और काउंटर इज इक्वल टू 0 कर दिया। हमने कहा क्या कि अब सम इज इक्वल टू सम प्लस एस ऑफ काउंटर, ठीक है? सम में क्या है, 0, और काउंटर की वैल्यू कितनी है, 0 ना? तो यहाँ एस ऑफ 0, एरे में एस ऑफ 0 फर्स्ट लोकेशन पे कितनी वैल्यू है, 0th लोकेशन पे 10 10। तो क्या हो जाएगा, 0 + 10 इज 10। 10 बोलो यहां तक क्लियर हो गया? अब जब पहला वैल्यू हमने प्लस कर लिया तो किस पे जाएंगे, दूसरी वैल्यू पे जाएंगे, काउंटर। तो विल ऐड इन द काउंटर, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर +1। तो काउंटर +1 मतलब काउंटर नंबर 1। काउंटर विल बी
1। तो अब क्या होगा, अब काउंटर जैसे ही 1 हुआ तो चेक करेंगे कि जितने नंबर थे 20 नंबर तक हम जा चुके हैं। इफ काउंटर लेस देन इक्वल टू लेस देन 20, काउंटर की वैल्यू कितनी है अभी? 19. 1 है, राइट? इज काउंटर लेस देन 20? Yes. यस लेस देन 20 है, तो फिर से Yes. दोबारा If yes, go to a step number 5. And what is that? Sum is equal to sum plus s of counter, and the value of counter is 1. So we need to add 10 plus s of 1 means 15. That is 25. Yes. Again, increment the counter by 1 and counter will become 1 plus 1. It means 2. And then it will go to check 2 is less than 20. Yes. Yes होते ही कहाँ जाएगा? 5 पे, and then sum is equal to sum of sum plus counter. It means 25 plus अब array of 2 में क्या है वैल्यू? 5। 5. बोलो समझ में आया? अब सर ये जो आप सम दिखा रहे हो ये तो आप मतलब इंटरनल वाला दिखा रहे हो, ये तो हमें शो नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक नहीं, इंटरनली ये वर्क करेगा, वर्क करेगा। समझ में? बिल्कुल। हाँ, ये शो नहीं करे, शो तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट करेगा। ठीक। और जब तक बच्चे आप लोग इंटरनल नहीं समझोगे कैसे प्रोग्राम लिखोगे? ये प्रोसेस पूरा मशीन के अंदर जो होने वाला है। Yes, it is automatically being done by machine, and we can only see the result over there. कैसे हो रहा है, मशीन कैसे रीड कर रहा है, ये हमें बिल्कुल परफेक्ट बोला आपने विषय। अब जैसे ही 20 मार्क्स का प्लस कर लेगा सबका, तो कहाँ जाएगा? अब हमारे पास कितना है? काउंटर भी है, सब कुछ है, तो एवरेज इज इक्वल टू क्या निकलेगा? सम तो निकल चुका है आपके पास, राइट? उसको 20 से डिवाइड कर देंगे और एवरेज में रख देंगे। Yes. उसके बाद एवरेज और सम को प्रिंट कर देंगे, एग्जिट कर जाएंगे। बोलिए, अभी तक समझ में आया? Yes, sir. Now I'll go. ये जो स्टेप 10 जो है प्रिंट सम एंड एवरेज, और स्टेप 10 में ही एंड। हाँ, स्टेप 10 में ये गलती से मिस प्रिंट हो गया, 11 करोगे ना इसको। ठीक है, Okay. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विषय। ऐसे ही पढ़ना चाहिए, पढ़ोगे तो पकड़ोगे गलतियां भी। मिस प्रिंटिंग है, सर प्रिंटिंग हेलो समझ सर। जी। हाँ, Sorry, हमें तो boss. एरी का वैल्यू देना ही पड़ रहा है, तो अगर उस लाइन पे ही मैं एरे 1 प्लस एरे 2 ऐसा कर दूं तो उधर ही तो निकल जाएगा सम। तो आपको कितना लंबा लिखना पड़ेगा बच्चे? नहीं, एरी का वैल्यू तो पुट करना ही पड़ रहा है सर। मतलब किसका 10 किसका 15, तो उसी लाइन पे अगर 10 प्लस 15 प्लस समथिंग कर दे तो हो जाएगा ना? वो तो जाएगा ही, लेकिन क्या ये बताओ कि हर बार तुम्हारी वैल्यू तो एक ही रहेगी ना फिर उसमें? मैं समझ गया कि आपने कहा कि एरे ऑफ जो एस ऑफ 1 इज इक्वल टू 15, एस ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, ऐसे कर देना। हाँ, तो इसको आपको 20 टाइम्स लिखना पड़ेगा ना, अलग अलग। सर एक्चुअली सौविक जी कह रहे हैं जैसे हम एरे में अलग अलग मेमोरी लोकेशन में दे रहे नंबर, उसकी जगह वो प्लस साइन लगा के वो वही पे ऐड करा दे उनको। देखो, इनका कहने का मतलब ये हो गया, फिर 10 प्लस हाँ जी सर, प्लस 5, राइट? यही कह रहे हो ना बच्चे? हाँ सर। बाकी एरे नहीं हुआ फिर। ये अगर आप कहोगे तो ये तो नॉर्मल नंबर हो गया, तो प्रोग्राम लिखने की भी जरूरत क्या है? वो एरे बचा ही नहीं। कैलकुलेटर का काम हो गया ना ये।
जैसे मैंने कहा कि आप अभी 40 लोग हैं हमारे साथ, राइट? हाँ तो अभी समझना, 40 लोग हैं आप लोग, तो 40 लोगों का आपने सबके एज का प्लस करना है। तो क्या मुझे पता है कि सबका एज कितना है? नो सर। पूछना पड़ेगा ना सबसे मुझे। हाँ तो हम प्री डिफाइन तो नहीं कर सकते इसको, हम पूछेंगे एक और एक एक करके इनपुट लेंगे, राइट? हाँ और अलग अलग रखेंगे, जैसे सौभिक का हो गया, सौभिक का हो गया, मान लो हमारे पास सौभिक का हमने 20 रख लिया, हमने आर्यन का रख लिया, हमने 21 रख लिया, हमने दिनेश का रख लिया, हमने 19 रख लिया, ऐसे करके हमें लिखना पड़ेगा ना इसको। हाँ सर। इसलिए हमें एरे में पहले इनपुट करना पड़ेगा। अगर हमारे अननोन नंबर्स हैं तो, और नॉर्मल नोन नंबर्स हैं तो उसके लिए तो कैलकुलेटर यूज करके काम कर लोगे। इसमें सर इंडेक्स में जो नंबर स्लाइस में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल, जो चेंजेस करके डाल दोगे उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम चल रिकॉर्डिंग जाएगा। दे देगा। लेकिन अगर हम लोग 1+5+6+ करेंगे तो उसमें वैल्यू हमें वही रहेगा जो हमने ऐड किया, दोबारा से। वंस डिफाइन दैट विल वर्क ऑन दैट वन। अभी एक चीज समझो, बस अभी आप लोगों ने प्रोसेस समझ लिया, अभी हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे ना तो इसको बढ़िया से क्लियर आएगा। एरे इज वेरी ह्यूज थिंग, एरे बहुत बड़ा चीज होता है, क्योंकि एरे के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है। कोई बात नहीं सौभिक, डिस्कस। अभी समझ में आया? अभी संतुष्ट हैं सौभिक? हाँ जी सर। हाँ Okay. मैं आप लोगों के साथ हूं, आप लोग चाहोगे तो 3 साल तक हूं, कोई दिक्कत नहीं। जहां दिक्कत होगी I'll explain the thing. नेक्स्ट है हमारे पास प्रोग्राम, कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने बताया था लास्ट क्लास में व्हाट इज अ प्रोग्राम। बेसिकली व्हाट इज अ प्रोग्राम, बताइए। So it is a set of instructions to produce a specific Program result. is बिल्कुल करेक्ट। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट्स, कुछ भी कर सकते हो, कलेक्शन ऑफ which can execute and produce result। बहुत बढ़िया। And the what is programming languages? Those languages which can be understandable by computer program to writing computer to writing programs are known as programming languages। यही होता है ना? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? where we execute the information and gets a result. Where we can execute the instruction to get the result ना? Okay, that is the compiler, उसको कंपाइलर कहेंगे, ठीक है? प्रोग्राम कह सकते हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मतलब क्या हो गया? दोज लैंग्वेजेस व्हिच कैन बी एक्सेप्टेबल बाय कंप्यूटर टू राइट प्रोग्राम्स आर नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। All the languages has their syntax and you can say their syntax and their grammar। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिखने के अपने ग्रामर होते हैं, सिंटेक्स होते हैं कि कैसे उसे लिख सकते हो, क्या लिखना है तो किस तरीके से लिख सकते हो, कैसे आप उसमें डेटा पास कर सकते हो। ये सब लिखने का जो तरीका होता है उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सर ये जो सिंटैक्स है वो हमें कहाँ से मिल जाएगा? जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो समझाया जाएगा आपको, बताया जाएगा। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सिंटेक्स बताई जाएगी आपको। वो याद रखना पड़ेगा हर हाँ, सिंटेक्स तो बच्चे आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है, क्योंकि जब तक याद नहीं रखोगे आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ क्या लिखूं। नहीं सर, जैसे कि हमें कहाँ मतलब आप सिखाया जाएगा सर, आप हमें समझाओगे तो ठीक है, वो बात नहीं। जैसे इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा? जैसे कि अगर जैसे मैं क्या क्या सिंटेक्स है, क्या है वो, कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसका क्या कुछ अलग सा वर्कबुक टाइप का होता है क्या उस सिस्टम के अंदर, लैंग्वेज के अंदर? डॉक्यूमेंट के अंदर भी होता है, और आप जो
आप वो स्टडी मटेरियल या बुक या कहीं से पढ़ते हो तो वहां भी बताया जाता है, राइट। और आप लैंग्वेज के अंदर भी आप जाओगे तो लैंग्वेज के अंदर एक क्या होता है, एक उसका मैनुअल होता है। उस मैनुअल, हर एक लैंग्वेज सॉफ्टवेयर के अंदर मैनुअल होते हैं, मैनुअल के अंदर ये सब चीजें दी जाती है, बट आफ्टर ऑल यू हैव टू रीड इट आउट। हाँ जी, और आर्यन कुछ बोल रहे थे और ये मयंक वशिष्ठ कुछ बोल रहे थे बच्चे। वो हमें डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड होता है ना? बिल्कुल, वही मैंने बोला आपको, मैनुअल प्रोवाइड होता है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड होता है, उसमें से पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल। और कुछ चीजें तो पढ़नी ही पड़ती है, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा, नया है अगर कोई तो। जैसे बड़े बड़े भी डेवलपर्स हैं, बड़े बड़े लोग भी हैं, कोई भी नया चीज लेते हैं तो उसका मैनुअल अच्छे से पढ़ते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से पढ़ते हैं, फिर उनको समझ में आता है। तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं हम क्या कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर दोस under which we can write programs for execution, right? Write program, and that can be acceptable by computer and its compiler. हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने सिंटेक्स होते हैं। Basically all programming languages has their syntax and a structure which the programmer should follow. ये तो नॉर्मल बातें हो गई हमारी। हम आते हैं elements of programming languages. What are the basic elements of programming languages? So there are so many elements of programming languages like variable, constants, data types, arrays, and expression. What is variable? Variable क्या होता है? Who will tell me about variable? What is variable? बताइए। एक लेबल्ड जिसकी वैल्यू अलग अलग हो, जिसकी वैल्यू अलग अलग हो, लिमिट हो, आप लोगों ने बताया, बहुत बढ़िया बताया आप लोगों ने, क्योंकि अक्सर लोग पढ़ाते भी यही हैं कि वेरिएबल दोज वैल्यू कैन वैरी। तो वेरिएबल इज अ नेम which takes memory space and store result for us. सिंपल रह लें, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक नाम होता है जो एक मेमोरी में स्पेस लेता है और हमारे लिए वैल्यू स्टोर करके रखता है बेस्ड ऑन इट्स टाइप। जी विकास, कुछ कहना चाहते हो बच्चे? बोलो। विकास सागर, कुछ कहना चाहते हो? जी सर, लैंग्वेजेस के फॉर्म में देखें तो मतलब वेरिएबल जो है स्मॉलेस्ट फॉर्म है मेमोरी यूज करने के लिए, जहाँ पे हमारा डाटा। वही चीज मैंने सिंपलेस्ट भाषा में समझाया कि एक नाम होता है जो मेमोरी लेता है और हमारे लिए वैल्यू स्टोर करके रखता है, यही काम होता है वेरिएबल का। आर्यन? जी सर। जी सर। जैसे सिंपल भाषा में मैंने क्या बताया आपको कि अगर हम कह रहे हैं इंटीजर ए, इट मीन्स क्या है? A is the name which is provided for a memory location with 2 byte of space. यही होता है वेरिएबल का मतलब। कोई भी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया कि कंप्यूटर जी इंटीजर टाइप का एक मेमोरी लोकेशन तैयार कीजिए, इंटीजर टाइप का एक मेमोरी लोकेशन तैयार कीजिए जिसका नाम ए दे दीजिए। तो ए इज व्हाट? ए इज अ वेरिएबल। अब ए क्या करेगा? ए कैन होल्ड अ वैल्यू विथ मैक्सिमम ऑफ 2 bytes because integer, the capacity of integer is 2 byte. Is it clear, Gaurav? It is clear, Abhishek?
सर ये 2 बाइट्स मुझे ये समझ में आया तो मतलब अब मैंने बताया कि इंटीजर की कैपेसिटी 2 बाइट का होता है स्पेस। अच्छा 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 ओके सर ओके सर। भूपति जी आपको समझ में आया? समझ गया जी। ओके सो वेरिएबल समझ में सबको आ गया? ऐसा कोई भी बच्चा जिसको वेरिएबल ना समझ में आया हो? प्रज्ञा सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा बताओ क्या हुआ, पूछो बच्चा, मुझे भी तो अच्छा लगेगा ना आप लोग पूछोगे तो। है। सर आप ए की वैल्यू 2 बाइट से क्यों लिए? अब मैंने बताया इंटीजर किस टाइप का वैल्यू मैंने लिया, इंटीजर टाइप का, राइट। इंटीजर ए कहा हमने, वैल्यू नहीं है वो, मेमोरी स्पेस है। तो इंटीजर का जैसे ही इंटीजर ए लिया हमने तो ए नाम का एक मेमोरी स्पेस तैयार करेगा। यहां तक समझ में आया प्रज्ञा? यस सर। और इंटीजर की कैपेसिटी होती है 2 बाइट, ये सिर्फ 2 बाइट का स्पेस एलोकेट करता है, ठीक है। अभी समझ में आ गया? यस सर। अब इसमें वैल्यू तुम जो भी रख लो वो चलेगा, लेकिन मैक्सिमम कितना बाइट तक का? 2 बाइट तक का। 2 बाइट से बड़ा साइज वाली वैल्यू वो नहीं लेगा। होप कि वेरिएबल सबको समझ में आया होगा। भंवर That mean as a variable should be under 2 bytes only, right, sir? yes, if the variable is Each type variable. of integer, no, if it is type of integer it will take only 2 byte of space. Okay. If it will be float it will take 4 byte of space. Every variable, every type means data type has some limitations, and I am talking about the limitation 2. Now it's clear? आप सिंपल समझो कि वेरिएबल क्या होता है, एक नाम होता है जो मेमोरी स्पेस ऑक्युपाई करता है, किसके बिहाफ पर? उसके डेटा टाइप के बिहाफ पर, और कुछ वैल्यू होल्ड करके रखता है हमारे फ्यूचर। मीन्स वेरिएबल इज द नेम विच होल्ड्स वैल्यू बेस्ड ऑन देयर डेटा टाइप्स। सर ये वेरिएबल और सिंटैक्स दोनों सेम है सर? नहीं, सिंटेक्स अलग होता है। सिंटेक्स का मतलब होता है जैसे इंग्लिश पढ़ने के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हो, ओके उसी तरह से सिंटेक्स क्या होता है, कोई भी प्रोग्रामिंग का अपना एक सिंटेक्स पैटर्न होता है जिसको फॉलो करना होता है। तो वो जो सिंटैक्स है वो भी क्या मेमोरी बाइट्स लेता है सर? नहीं, सिंटेक्स नहीं लेता है, वेरिएबल सिर्फ मेमोरी लेता है। अभी आता हूं उस पे, सिंटेक्स भी बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी आपको ये समझ में आ गया वेरिएबल। हाँ सर ये क्लियर। दूसरा होता है कांस्टेंट्स। अब कांस्टेंट क्या होता है भाई? जो नंबर चेंज ना हो, मतलब वो सेम ही रहे। हाँ देखो, हर एक वेरिएबल चेंज ही ना हो, एकदम बिल्कुल सही बताया कि कांस्टेंट वेरिएबल सेम ही रहे। मतलब इंटायर द प्रोग्राम, कोई चीज आपने डिफाइन कर लिया तो आपके लिए वही बना रहे हमेशा के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम लोगों का नाम क्या है, आपका नाम अभिषेक है, मेरा नाम ब्रिजेश है, आर्यन है, विकास है, दिनेश है, भूपति है, तो क्या है? ये कांस्टेंट है ना। इंटायर लाइफ हम लोगों का नाम चेंज होगा? चेंज करने वाले कर लेते हैं, लेकिन नहीं, लॉजिक नहीं बनता। इंटायर लाइफ हमारा एक ही रहेगा, तो ये कांस्टेंट हो गए, ठीक है। एक कॉन्स्ट्रेंट्स भी होता है, एक कांस्टेंट होता है और दूसरा कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है लिमिटेशन। हर जैसे हमारी लिमिटेशंस होती है। जैसे मान लो इंटीजर है, तो इंटीजर की कैपेसिटी क्या होती है? 32,767 से लेकर के -32,768 तक।
इससे बड़ी वैल्यू आप नहीं लिख सकते। 32,767 से बड़ी वैल्यू नहीं लिख सकते, और माइनस में 32,768 से छोटी वैल्यू नहीं लिख सकते। तो यह क्या हो गया, उसका कंस्ट्रेंट्स हो गया, लिमिटेशन हो गया उसका। दो चीजें होती हैं, एक कांस्टेंट होता है प्रोग्रामिंग में और एक कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स का मतलब लिमिटेशंस पड़ते हैं, और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू जो फिक्स हो जाती है, जो इंटायर द प्रोग्राम कैन नॉट चेंज फॉर एनीवन। बोलिए, दोनों समझ में आ गया आप लोगों को? आज आप लोग कम Yes, भी sir. आए हो, और आज इंटरेक्शन भी अच्छा नहीं बन रहा है। मेरे पढ़ाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है ना आप लोगों को? No, no, sir. नहीं सर, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है सर, इंटरेस्ट नहीं है सर, नहीं है। सब्जेक्ट में आपकी तरफ इंटरेस्ट आ से रहा है। ओके, डेटा टाइप। नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप समझने से पहले हम डेटा समझते हैं। व्हाट इज डेटा? डेटा क्या होता है, क्या बताएंगे आप लोग डेटा के विषय में पूछूं तो? Sir, data is a form of Value- inputs which is given by a user. So बहुत values बढ़िया। which the information, whatever the information or values, it's called data. ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन अब इससे थोड़ा सा अलग चले गए आप। इंफॉर्मेशन और डेटा में बहुत डिफरेंस होता है। अब थोड़ा सा समझ लो, जब उठाए हो बात तो। अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। अब प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन नॉलेज हो जाता है भंवर। यस। देखो, तीन Data चीजें। means sir, data is raw. यस, बहुत बढ़िया सुशांत, आपने बताया कि डेटा इज अ रॉ मटेरियल विच इज प्रोवाइडेड। एक मिनट, 1 मिनट बच्चे लोग। हेलो, हाँ जी सर। हेलो, सॉरी बच्चे लोग, एक क्लास को होस्टिंग में दिक्कत आ रही थी तो वहां चला गया था। सॉरी। हाँ, कहाँ पे थे हम लोग? डेटा पे थे, राइट?
आज मैंने आप लोगों का अटेंडेंस लेना मैं भूल गया हूँ, मुझे याद ही नहीं था। एक बार अटेंडेंस में ले लेता हूँ आप लोगों का, ठीक है। मेरी आवाज तो आ रही है आप लोगों के पास? यस सर। Yes, sir. Yes. yes sir ठीक है, स्क्रीन शेयर्ड है। तो डेटा टाइप पे हम पढ़ रहे थे। तो डेटा टाइप क्या होता है? हाँ, डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज की बात बता रहे थे। डेटा क्या होता है, जैसा कि सुशेन ने बताया कि डेटा क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। बहुत बढ़िया। वट एवर रॉ मटेरियल वी आर पासिंग इट आउट, दैट कम्स अंडर द डेटा। और डेटा, अगर डेटा पे प्रोसेसिंग हो गया तो इंफॉर्मेशन बन जाता है। और प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? जो प्रोसेसिंग हो गया और हमारे तक पहुंच गया, ऑडियंस तक पहुंच गया, तो उसे हम कहते हैं नॉलेज। लेकिन हम, चलो ये अलग की बातें थी। अब हम डेटा टाइप पे आ रहे हैं। डेटा टाइप आप पूछ रहे हैं, तो डेटा टाइप है क्या भाई? तो डेटा टाइप का मतलब हो गया कि कोई भी आप रॉ मटेरियल जो डाल रहे हैं उसका कोई ना कोई कैटेगरी होगा, और उस कैटेगरी को हम क्या कहते हैं? डेटा टाइप कहते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा, बेसिकली डेटा टाइप का मतलब, जैसे मान लो आप क्या क्या डाल सकते हो भाई। तो डेटा टाइप की बात करोगे आप, तो डेटा टाइप क्या हो सकता है? नंबर हो सकता है, या कैरेक्टर हो सकता है, राइट। आप दो ही तरह का आप इनपुट दे सकते हो, या तो नंबर नहीं तो कैरेक्टर। जी तारा, तारा जी। नहीं है सर, नहीं है सर, कह रहे और नंबर, अंडर नंबर वी कैन हैव मेनी टाइप्स, लाइक इंटीजर डाल सकते हो, फ्लोट कर सकते हो, राइट। तो इंटीजर का मतलब क्या होता है? जैसे 15 लिखा, 20 लिखा, ये सब क्या है? इंटीजर है। फ्लोट का मतलब जैसे 1.5, ये पॉइंट्स वाले वैल्यू जो लिखोगे क्या है? फ्लोट होगा। कैरेक्टर में क्या है? जैसे एक कैरेक्टर लिख रहे हो, ए, कैरेक्टर को सिंगल कोट के अंदर लिखा जाता है, बी, इसी कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो स्ट्रिंग हो जाता है। स्ट्रिंग में क्या लिखोगे? जैसे मेरा नाम पूरा ब्रिजेश, डबल कोट के अंदर हम लिख देते हैं। तो डेटा टाइप्स आर दोज विच आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ डेटा द यूजर इज प्रोवाइडिंग फॉर द ऑपरेशनल एक्टिविटीज। ऑपरेशनल एक्टिविटीज के लिए जितने टाइप के डेटा डाले जाते हैं, उन सब टाइप ऑफ डेटा को क्या बोलते हैं हम लोग? डेटा टाइप। समझ में आ गया? अब कुछ डेटा टाइप्स होते हैं फिक्स, जैसे इंटीजर मैंने बताया आपको। इंटीजर 2 बाइट का साइज लेता है, चाहे साइंड इंटीजर हो या अनसाइंड इंटीजर हो। साइंड इंटीजर क्या होता है, अनसाइंड इंटीजर क्या होता है? साइंड इंटीजर का मतलब हुआ, साइंड इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि माइनस में लिख सकते हो ना, माइनस में 15, माइनस में 20, तो ये साइंड इंटीजर हो गया। फ्लोट और फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है? 4 बाइट का साइज लेता है। मेमोरी में स्पेस कितना लेगा? 4 बाइट का लेगा। और ये क्या वैल्यू होती हैं? जो पॉइंट्स वाली वैल्यूज होती हैं सारी क्या होती हैं? फ्लोट और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के अंदर जानी जाती हैं। नेक्स्ट होता है डबल। डबल क्या होता है? 8 बाइट का स्पेस लेता है। 8 बाइट का स्पेस लेता है, 8 बाइट का स्पेस लेता है। और 8 बाइट के स्पेस के लिए जैसे कि इसमें अगर डबल और इसकी बात करोगे तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हो जाती हैं। 1 मिनट, एक कॉल ले लो, बस 1 मिनट दे दो बच्चे लोग।
हाँ बच्चे, तो डेटा टाइप, उसके बाद होता है कैरेक्टर, जो कैरेक्टर 1 बाइट का स्पेस लेता है, जिसे कैर डिनोट से डिनोट करते हैं, और इसमें एक एक कैरेक्टर इनपुट के रूप में दिया जाता है। बोलिए बच्चे लोग, इतना समझ में आया डेटा टाइप्स के विषय में? Yes. ओके, अभिषेक समझ में आया बच्चे? यस सर। एरे समझाने की जरूरत है। एरे क्या होता है, अभी बताया था मैंने। Slices where we put the एरे क्या होता है, मेमोरी लोकेशन होता है जिसको डिवाइड करके हम लोग मल्टीपल डेटा एक साथ में रख सकते हैं, राइट? जैसा कि पिछले डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ मैंने लिखवाए थे आप लोगों को। अब एरे 2 तरह के होते हैं बेसिकली, एक होता है 1 डायमेंशनल एरे और दूसरा होता है 2 डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशनल एरे का मतलब एक रो हमने बना दिया, उसमें जितने भी कॉलम्स रख दिए, ये क्या हो गया, 1 डायमेंशनल एरे। जैसे आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा है ना, मैट्रिक्स में आप पढ़ते हैं रो मेजर मैट्रिक्स और कॉलम मेजर मैट्रिक्स। या तो एक रो होगा या एक कॉलम होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। यानी कि सिर्फ एक रो ही हो सकता है या सिर्फ एक कॉलम ही हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं रो मेजर मैट्रिक्स और कॉलम मेजर मैट्रिक्स। लेकिन वही होता है 1 डायमेंशनल एरे। लेकिन 2 डायमेंशनल एरे का मतलब क्या होगा कि देयर आर रोज एंड कॉलम्स। हाँ अभिषेक बोलो। ये हो गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या होते हैं, रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? 0 1 2 0 1 2, तो ये क्या होगा, इस सेल का नाम क्या होगा, 0 0 0 1 0 2। क्यों होगा? A10 जी जी तारा जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? no, nice sir. I'm telling the cell number, index number. Yes, good. And the next one is 1 0, and the number of this one will be 1 1 1 1 1 1 2, 1 2 because of combination of rows and columns. columns. Good. This is the 2 dimensional array, and this is 1 dimensional array. Is it clear by everyone? Understood? Yes, sir. Good. Then expression. Expression is what? Expression is the combination of operators and operands. Before going to understand by this one, we should understand what is operators, what are operators and what are operands. See, if I am writing A is equal B, C is equal to A plus B, it means it is an expression. Okay. And if expression is there, it means there are the combination of operands and operator. Here A, B and C are the operands. And plus and equal to are operators. Why? Operators are those which is an action taken on the expression. जो
जिसपे एक्शन लिया जाता है वो क्या कहलाता है? ऑपरेटर्स कहलाता है। और जिनके ऊपर जो ऑपरेशन होता है वो ऑपरेटर्स कहलाते हैं। जिनके ऊपर ऑपरेशन किया जाता है, ऑन दोज द ऑपरेशन टेक्स प्लेस is known as operands. So here on A and B we are doing a plus operation and going to assign the value of A plus B to C. So A, B, C are the operands and plus and equal to are operators. बोलिए यहां पर किसी को कोई डाउट है तो? ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स में, एक्सप्रेशन में। जी क्लियर। इक्वल टू और प्लस जो है वो ऑपरेशंस है, और ऑपरेटर्स जो है बिल्कुल, ये A ऑपरेशन। और बी जो है वो ऑपरेटर्स। हाँ, जिनके ऊपर ऑपरेशन किया जाता है वो ऑपरेंड कहलाते हैं, और जो ऑपरेशन होता है वो ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है। अब ऑपरेटर कई तरह के होते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करेंगे तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, डिवीजन, ये क्या हो गए? सब अर्थमेटिकल ऑपरेटर हो गए। रिलेशनल ऑपरेटर जो दो ऑपरेंट के बीच में रिलेशन बताता हो, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या हो गए? सारे रिलेशनल ऑपरेटर हो गए। लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब होता है एंड, और एंड। और को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे देते हैं, डबल पाइपलाइन। एंड को हम डबल एंड लिखते हैं। नॉट होता है। तो ये तीन तरह के ऑपरेंड होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब इक्वल टू को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। जैसे हमने लिखा a इज इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हुआ? द वैल्यू 5 इज गोइंग टू असाइन ऑन a को हमने 5 दे दिया, यही होता है इसका वैल्यू मतलब। तो ये होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। assignment operator. यस। अर्थमेटिक ऑपरेटर समझाने की जरूरत है आप लोगों को? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, मैथमेटिकल डिवाइड, ऑपरेटर आएंगे। सारे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। आपका रिलेशनल ऑपरेटर एक बार बता दीजिए ना। कौन सा बेटा? असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब जैसे a इज इक्वल टू 5 लिखा ना मैंने, तो हमने क्या किया? a को 5 दे दिया, यही ना? ओके ओके ओके। तो ये साइन कर दिया, इसलिए असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। और कोई रिलेशनल ऑपरेटर समझाने की जरूरत है? लेस देन, इक्वल टू, जैसे लेस देन a लेस देन b, b लेस देन b, ग्रेटर देन c, ऐसा कुछ भी लिखते हैं हम लोग। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये सब क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर। कोई दिक्कत बच्चे लोग? ये सर इक्वल टू में डबल इक्वल टू का मतलब क्या है? ये जो डबल इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। a इक्वल टू b है, ठीक है? हाँ। तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ a इज बोथ आर इक्वल। कंपेयर करने के लिए दो डेटा वैल्यूज को कंपेयर किया जाता है, उसके लिए यूज किया जाता है डबल इक्वल टू। तो वो तो सिंगल इक्वल टू में नहीं होता ना, सिंगल इक्वल टू में तो असाइन करते हैं ना। जैसे कहीं पे 5 रखना है तो रख दिया। गुड बच्चे, गुड। अब कंडीशनल एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स।
कंडीशनल एंड लूपिंग स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कोई कंडीशन नहीं देते हैं हम लोग, जैसे मान लो हमें चेक करना है कि कोई नंबर इवन है कि ऑड है, तो हमने कहा इफ नंबर मॉडुलस डिवीजन 2 इक्वल टू 0, नंबर मॉडुलस डिवीजन 2 इक्वल टू 0, तो हम इवन कह दिया और एल्स क्या कह दिया, ऑड। अब नंबर मॉडुलस डिवीजन 2 इक्वल टू 0 क्या हुआ, कंपेयर कर रहे हैं ना हम लोग, वैल्यू 0 के साथ इसके रिजल्ट को कंपेयर कर रहे हैं। बोलो ये समझ में आया? Yes. यस तो कंपेयर यहाँ पर क्या, कंडीशनल ऑपरेटर, जब कोई कंडीशन लेकर के काम करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर। If and else, sir. इफ एल्स कह सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट। और अगर सिंपल भाषा में कहें, 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट दे दो भाई। सॉरी बच्चे लोग, सॉरी। तो हमने अभी क्या देखा, आने जाने का काम लगा ही रहता है। यस, तो अभी हम क्या देख रहे थे, कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर समझ में आया आप लोगों को? जैसे यहाँ लिखा हुआ है इफ n मॉडुलस डिवीजन 2 इक्वल टू 0, तो प्रिंटफ नंबर इज इवन नंबर, एल्स नंबर इज ऑड नंबर। तो ये हमारा एक कंडीशन हो गया। बोलो कंडीशनल ऑपरेटर में समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट कंडीशनल ऑपरेटर में? No, sir. No, sir. नो अब लूपिंग स्टेटमेंट, एक बार समझा दीजिए दोबारा सर। हाँ कोई बात नहीं। देखो हमने कंडीशन का मतलब हमेशा होता है इफ। तो इफ के 2 पार्ट होते हैं, ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट। ठीक है, ट्रू और फॉल्स में क्या कहता है कि अगर इफ कंडीशन में, सिंपल भाषा में हम कहते हैं क्या, इफ इट विल रेन टुडे आई विल नॉट गो टू स्कूल, अदरवाइज आई विल गो टू स्कूल। तो इफ एक छिपा हुआ है, तो हमने यहां पर प्रोग्रामिंग की भाषा में क्या लिखा कि इफ n मॉडुलस डिवीजन 2 इक्वल टू 0, तो n मॉडुलस डिवीजन 2 ये क्या बताता है, जब देखो 2 तरह के डिवीजन होते हैं, n डिवाइडेड बाई 2 हम लिख सकते हैं। ध्यान रखना, दिमाग में बैठा लेना इसको कि डिवाइड 2 तरह के होते हैं, एक n डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं और n मॉडुलस डिवीजन 2 कर सकते हैं। इस परसेंट को मॉडुलस डिवीजन कहते हैं। तो ये जो करेगा ये क्या देगा, कोसेंट देगा, और ये क्या देगा, रिमाइंडर देगा, राइट। कोसेंट का मतलब कि अगर n की वैल्यू हमने 5 दी, तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट कितना आएगा, 2, और 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। भारती समझ में आया बच्चे? यस सर आ गया सर। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, लिखा कि n मॉडुलस डिवीजन 2 इक्वल टू 0, यानी कि डिवाइड करने पर 0 आएगा तो इवन नंबर हो जाएगा, नहीं तो एल्स का मतलब नहीं तो क्या होगा, ऑड नंबर। अब क्लियर है सर ये प्रोग्राम, सॉरी टू इंटरप्ट, नो ये प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग कोड इज फॉर ऑल, इट विल suitable for all programming, sir? नहीं, दिस इज फॉर ओनली C language, the syntax C language. of C language, but
you can write for each and every programming languages like this. Okay, that means it's a basic C language coding, sir. Yes, it's a basic of C language, because everything, I mean, C is the initial language for each and every students, each and every type of peoples, right? Got it, sir. Got it, sir. एक बात पूछना था सर, ये तो सर वन टाइप ऑफ परसेंटेज जैसा सिंबल है, तो इसको मॉड्यूलस ऑफ डिवीजन कैसे हम लोग उसमें क्या कंप्यूटर साइंस में अभी बताया अभिषेक आपको कि कंप्यूटर साइंस में दो तरह के डिवीजन होते हैं, एक डिवीजन और दूसरा मॉडुलस डिवीजन, ठीक है? हाँ, तो मॉडुलस डिवीजन को परसेंटेज के साइन से डिनोट करते हैं और डिवीजन को इससे। जहां पर हमें रिमाइंडर की जरूरत होती है ये वाला डिवीजन यूज करते हैं, जहां कोसेंट की जरूरत होती है ये वाला डिवीजन यूज करते हैं। मैं वो समझ गया सर, ये मुझे समझ में आया, लेकिन अगर कोई वैल्यू का परसेंटेज निकालना है तब क्या ये वैल्यू देंगे तो वो मॉड्यूलस परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं ना उसमें। ओके ओके, ठीक है ठीक है। Next, come to the looping. Looping is what? Looping is the process of running behind a condition. यही होता है ना लूपिंग में। लूपिंग क्या होता है? किसी कंडीशन के बिहाइंड, कंडीशन के इर्द गिर्द घूमते रहना क्या कहलाता है? लूपिंग कहलाता है। जैसे मैंने कहा क्या कि काउंटिंग, जस्ट काउंट 1 to 10, तो कंडीशन क्या दिया मैंने? यू नीड टू काउंट अप टू 10, यही ना बोला मैंने? तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आप रुक जाओगे। क्यों? बिकॉज आई हैव गिवन अ कंडीशन दैट यू हैव टू काउंट टिल 10 ओनली। 10 तक ही काउंट करना है, इसलिए आप 10 पे जाकर रुक गए, राइट? समझ में आया? यस। तो काउंट टिल 10 की हमने बात करी। अब उसी तरह से लूपिंग का बेसिकली, लूपिंग के अंदर हमने जब काउंटिंग करी तो क्या देखा? इसमें एक स्टार्ट पॉइंट था। स्टार्ट क्या था? 1 to 10 हमने बोला था। स्टार्ट इज इक्वल टू 1, there was an end, that is 10, and we were just counting like 1 2 3 4. When we have started from 1, incremented 1 by 1 and gone till 10. So there are 3 conditions, that is initialization, condition and increment. यही है ना बच्चे लोग? यस सर। इनिशियलाइज कहां से किया? 1 से। कंडीशन चेक किया और इंक्रीमेंट करते चले गए, और जहां पे खत्म हो गया हमने उसको, हम उससे एग्जिट कर गए। सर वन क्वेश्चन। बोलिए सर, जैसे अभी ये कंडीशन, जैसे अभी आपने चेक की, लूपिंग में लगी हुई है। बिल्कुल। अभी जैसे हमने प्रीवियसली एक एग्जांपल देखा था, सम ऑफ 20 जो हमारे एरे के अंदर थे स्टूडेंट्स, उसमें भी हमने एक इनिशियल चीज ली, फिर कंडीशन चलाई, और जहां हमारा सम आके मिला वहां पे खत्म हो गया। विच इज आल्सो लाइक एग्जांपल ऑफ लूपिंग। यस, दैट वाज आल्सो लूपिंग, लेकिन वहां मैंने नाम नहीं बताया था आप लोगों को। ओके, वहां भी लूप चल रहा था, यहाँ भी लूपिंग चल रहा था। ओके सर। अब हमने कह दिया क्या, मान लो कि एक बस स्टॉप, बस से आप ट्रेवल करते हो, यस सर। बस से ट्रेवल करते हो और ये सारे स्टॉपेज है बस के। आप मान लो लोकेशन ए से चले हो, लोकेशन बी तक जाना है, तो आपने यहाँ बैठ जाओगे, बस में टिकट ले लोगे, लेकिन जितना स्टॉपेज आएगा आप चेक करते रहोगे ना कि हमारा डेस्टिनेशन ये तो नहीं है, यहाँ गए तो
फिर यहाँ गए तो चेक करोगे डेस्टिनेशन ये तो नहीं है, यहाँ गए तो जब तक आपका डेस्टिनेशन नहीं मिल जाएगा क्या करोगे, चेक करते रहोगे। और Yes. ये यही प्रोसेस कहलाता है लूपिंग, जिसमें क्या हो गया, ये स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया, आपका ये सोर्स हो गया, कहने का मतलब ये डेस्टिनेशन हो गया, ये आपके क्या हो गए, सारे स्टॉपेज हो गए, जहां पर एक एक स्टॉपेज से आप इंक्रीमेंट करके चेक करते चले जाओ। ठीक है, Yes. तो लूपिंग का मतलब यही होता है। लूपिंग बेसिकली 3 तरह की होती है आपके सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। अगर हम लूप की बात करते हैं तो लूपिंग बेसिकली 3 तरह की होती है। सबसे पहले व्हाइल लूप होता है, दूसरा हमारा डू व्हाइल होता है, और तीसरा हमारा फॉर। व्हाइल लूप या कोई भी लूप हो, सबसे पहले इसका स्टेप में क्या है, इनिशियलाइजेशन। व्हाइल में हमने दे दिया कंडीशन, इसमें स्टेटमेंट जो भी लिखना है आपको लिखो, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी प्रोसेस करना है, और क्लोजिंग। सिमिलरली इनिशियलाइजेशन, व्हाइल के अंदर कंडीशन, सॉरी डू व्हाइल कर रहे हैं ना हम लोग, इनिशियलाइजेशन, ये सिंटेक्स लिख रहा हूं आपका, डू, जो भी स्टेटमेंट लिखना है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो भी देना है, क्लोजिंग, देन व्हाइल, और व्हाइल के अंदर कंडीशन, और यहां सेमीकोलन लगेगा लेकिन यहाँ पे ऊपर में नहीं लगेगा। और फॉर लूप की बात करेंगे तो फॉर, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और एसटीएमटी स्टेटमेंट, क्लोजिंग। ये तीनों लूप के सिंटेक्स हो गए। देखो सिंटेक्स सब में एक ही है, बस उसका डेकोरेशन क्या है अलग अलग है, राइटिंग स्टेप्स अलग अलग है। सिंटेक्स में चीजें सब उतनी ही लिखनी है, चाहे डू व्हाइल में लिखो, व्हाइल में लिखो, या फॉर में लिखो। बोलिए, सब क्लियर है? हेलो, समझ, इनिशियलाइजेशन, डू, उसके बाद स्टार्ट। Clear है। हाँ, ओपनिंग ब्रेस, देन स्टेटमेंट जो भी लिखना है, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी करना है आपको, क्लोजिंग ब्रेस, व्हाइल और कंडीशन लिख देंगे। सर while लूप को समझना हो तो जैसे कोई एग्जांपल लाइक, बहुत बढ़िया, फिर से समझो। पूरा मैं समझा देता हूँ। मैंने पहले ही बोला था इस चैप्टर में टाइम लगेगा। अभी हमारे पास कितनी क्लासेस है? 3 क्लासेस है ना? यस सर। हो जाएगा कोर्स पूरा। व्हाइल, हमने कहा इनिशियलाइजेशन, व्हाइल, कंडीशन, हमने कहा इनिशियलाइजेशन।
हमने कहा डू, हमने कहा SPMT स्टेटमेंट, इसमें लिखा फॉर, सिंटेक्स यही था। यस सर। अब हम तीनों से प्रोग्राम लिख रहे हैं 1 to 10 प्रिंट करने के लिए। तो सबसे पहले व्हाइल में क्या इनिशियलाइजेशन, ओके a इज इक्वल टू 1 ले लिया मैंने। दूसरा क्या है, कंडीशन, व्हाइल कंडीशन। हमने लिखा व्हाइल a लेस देन इक्वल टू 10। a प्रिंट किया, a प्लस प्लस कर दिया, एक एक करके इंक्रीमेंट कर दिया। ओके उसी को डू व्हाइल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इंटीजर a इज इक्वल टू 1 2 while उसी को अगर फॉर लूप से लिखेंगे तो क्या है, फॉर लूप के लिए तो सर आपने बता दिया था एग्जांपल वो। a इज इक्वल टू 1 a लेस देन 10 a प्लस प्लस। बस तीनों लूप का एक एग्जांपल हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा एज ए स्टूडेंट आपको पढ़ना चाहिए व्हाइल लूप अच्छे तरीके से, क्योंकि व्हाइल का ही इंटीग्रेटेड पार्ट है सारे। ओके सर। और व्हाइल से ही आपकी लॉजिक सही होगी प्रॉपर। हाँ, लिखने में आसान सबसे ज्यादा कौन सा है, फॉर लूप। फॉर लूप। अभी क्लियर हो गया ना। यस सर। अब नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन एंड सबरूटीन। सबरूटीन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। तो सबरूटीन और फंक्शन ये कभी कभी पेपर में पूछ देता है, सबरूटीन और फंक्शन के विषय में। लेट्स सम अप द चैप्टर। यूनिट को खत्म करना है जल्दी से जल्दी, हम लोगों के पास में 7-8 मिनट रह गए हैं, उसके बाद दूसरी क्लास है मेरी। तो सबरूटीन और फंक्शन क्या होते हैं, तो पीसेस ऑफ कोड, जैसे बड़ा कोड लिखते हो तो पार्ट बाय पार्ट डिफाइन करते हो, राइट। स्पेसिफिक टास्क से रिलेटेड ब्लॉक ऑफ कोड को हम क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, राइट। पीस ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ कोड फंक्शन है सर। फंक्शन है। और जैसे कह सकते हो सिंपल कि हमने क्या कर दिया कि एक चीज और याद रखना, फंक्शन जब भी कोई होगा ना, तो जैसे ए बी करके यहाँ लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस जरूर होगा उसके साथ। हम लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़ते आए हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स और एफ एक्स, यही पढ़ते आए ना। यस सर। इसको एफ एक्स कहेंगे, लेकिन इसको क्या कहेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स कहेंगे। क्यों, बिकॉज ऑफ लेफ्ट एंड राइट पैरेंथेसिस। सिमिलरली फंक्शन इज व्हाट, फंक्शन इज अ block of codes, group of codes which can execute together and produce a specific result. Function जो specific result के लिए एक कोड का कलेक्शन, ब्लॉक ऑफ कोड, लाइन ऑफ स्टेटमेंट को हम मिला करके बनाते हैं, उसे फंक्शन कहते हैं। एंड सबरूटीन कैन बी अ सब प्रोग्राम। सब प्रोग्राम माने प्रोग्राम के अंदर पार्ट्स बाय पार्ट डिवाइड कर दिया हमने कि ये इस कैलकुलेशन के लिए इतना, इस कैलकुलेशन के लिए ये इतना, इस कैलकुलेशन के लिए, तो हम उसे कहते हैं सबरूटीन। तो सबरूटीन और फंक्शन आप लोगों को टास्क दे रहा हूं रीड करने के लिए, ये आप लोग रीड करेंगे
एडिटर, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ये ट्रांसलेटर होते हैं। ट्रांसलेटर मैंने बताया था शुरू में आप लोगों को, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर याद होगा तो पहली क्लास में ही बताया था, याद है? ये सब बताया था आपने। तो इसको भी आप लोग रीड करेंगे। एडिटर क्या होता है? एडिटर का मतलब जो भी प्रोग्रामिंग आप लिख रहे हो तो उस प्रोग्रामिंग के लिए आपके पास एडिटर्स होते हैं। ये सर जैसे VS इनमें कोड और प्रोग्राम, ये सब चीजें। हाँ, VS कोड आप यूज करते हैं, सबलाइन टेक्स्ट यूज करते हैं, नोटपैड प्लस प्लस यूज करते हैं, नोटपैड यूज करते हैं, ये सारे एडिटर्स हैं। तो ये आप लोगों को पढ़ करके रखना है नेक्स्ट क्लास के लिए। फिर हमारे पास सिर्फ बच जाएगा 1 यूनिट बच जाएगा सेकेंड ब्लॉक का और 3 यूनिट बच जाएगा थर्ड ब्लॉक का। हम लोग इसको कवर करेंगे 2 क्लासेस में, और लास्ट क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 4 साल के या 2 साल के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे, ताकि आप लोग आसानी से एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। ठीक है बच्चे लोग? ओके सर। ओके देन, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते।